Hi everyone, a very good evening to all of you and welcome back once again to another class of PIB norm. In today's class, we are going to cover the PIB news from 21st, 23rd of August 2026. I hope you guys can see me properly and can hear me properly. If yes, please give me a thumbs up. Good evening, Bhakti, Destination, Tanya, Sambhav, Anup. Very good evening, guys. I hope everything is fine. I hope you guys can see me properly and can hear me properly. So that, jaldi se bataiye so that we can start the class. And yeah, this PIB current affairs is important for all the government examinations now. Whether it is regulatory bodies, उसके लिए तो वो पहले से ही important था. Now it is very important for bank PO and UPSC as well. Okay, so please give me a thumbs up if all good so that we can quickly start the class. जल्दी से बताइए. All right, let's start the class without any delay and let's talk about the very first question for the day. Very important. Definitely, there is going to be a question in your examination. Question number one. Consider the following statements with respect to the mobile phone manufacturing scheme and you need to identify the correct statements. देखो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम हमने पहले भी पढ़ी थी व्हेन इट वाज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट. ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट इट व्हेन इट वाज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज नाउ इट हैज बीन फाइनली notified by the Ministry of Electronics and IT in the official gazette of the government of India. ठीक है, अब ये स्कीम नोटिफाई हो चुकी है. सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम मोर एलिमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम. क्या है जी ये स्कीम? मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम. नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है. देखो पहले एक पीएलआई इलेक्ट्रॉनिक्स स्कीम हुआ करती थी. ठीक है, देयर वाज अ स्कीम पीएलआई इलेक्ट्रॉनिक्स. नाउ दिस स्कीम एंडेड ऑन 31st March 2026. दिस स्कीम एंडेड ऑन 31st March 2026. उसी का ये रिकस्टीन्ड फॉर्म है जिसका नाम अब है क्या? मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम. एंड ऑब्वियसली द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड अ बूस्ट, टू गिव अ बूस्ट टू द मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. इंडिया में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना is the major objective of this scheme, and this boost can only be given by providing some kind of financial assistance or incentive or some kind of support, right? So what kind of support is this we'll talk about it, right? The objective is to enhance the scale of the mobile manufacturing supply chain through higher domestic value addition and strengthening domestic manufacturing capabilities. Iska jo major objective hai, that is to strengthen the domestic manufacturing capabilities, and obviously it can only be strengthened if we if we strengthen the domestic value addition chain, that domestic value chain addition, यानी कि जो हमारे domestic manufacturing में हर लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी प्रोसेस लगता है उस प्रोसेस को एनहांस करने का काम इस स्कीम के अंदर किया जाएगा. ठीक है, इट विल सपोर्ट द इंडियन मोबाइल फोन ब्रांड्स टू अचीव टेक्नोलॉजिकल सॉवरेंटी. टेक्नोलॉजिकल सॉवरेंटी का मतलब क्या है? दे मस्ट नॉट depend, they must not rely on the foreign technology, on the imported foreign technology. They must develop their own technology for the mobile manufacturing, capture great economic value. Of course, when it will be manufactured in India, when mobile phones are going to be manufactured in India, obviously the cost is going to be less, and encourage Indian patents in design and R&D. ठीक है, अभी हमारा सारा जो मोबाइल फोन है वो सारा जो डिजाइन है और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है. सो टू गिव अ बूस्ट टू द इंडियन पेटेंट्स इन डिजाइन एंड R&D ऑफ मोबाइल फोन्स. ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है. द टोटल आउटले इज 62,500 crore. ड्यूरेशन इज 5 years, right? 2026-27 to 30-31, that is 5 years. And there are two targeted segments under this. ठीक है, दो टारगेटेड सेगमेंट्स हैं. जो टारगेट सेगमेंट वन है, that is under target segment 1, the government is going to incentivize the mobile phone manufacturing. यानी जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा. जैसे कि पीएलआई इलेक्ट्रॉनिक्स में होता था, इंक्रीमेंटल सेल्स के ऊपर द गवर्नमेंट यूज टू प्रोवाइड इंसेंटिव अंडर द पीएलआई स्कीम. सिमिलरली हेयर ऑल्सो बेस्ड ऑन द इंक्रीमेंटल सेल्स, जैसे जैसे सेल्स बढ़ती जाएगी तो डिपेंडिंग ऑन द सेल्स द गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड द इंसेंटिव. और इंसेंटिव जो होगा that will range from 2.25% to 5%. that depends on various terms and conditions जिसके अंदर हमें बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, डिफरेंशिएटेड इंसेंटिव होगा ranging from 2.25% to 5%. ठीक है,
और जो टारगेटेड सेगमेंट 2 होगा, यानी टारगेट सेगमेंट 2 जो होगा दैट विल बी सपोर्टिंग इंडियन मोबाइल फोन ब्रांड्स, ये इंडियन मोबाइल फोन ब्रांड्स को प्रमोट करेगा एंड इन दैट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव ऑफ 5% फॉर इंडियन ब्रांड्स एंड एन एडिशनल इंसेंटिव ऑफ 3% फॉर इंडियन डिजाइन एंड R&D। ठीक है, जो अगर इंडियन ब्रांड्स होगा तो उनको 5% का इंसेंटिव दिया जाएगा फिक्स, यहाँ पे कोई डिफरेंशिएटेड इंसेंटिव नहीं है ऑन द इंक्रीमेंटल सेल, और एडिशनल इंसेंटिव होगा 3% का इफ द डिजाइन ऑफ द मोबाइल फोन एंड द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मोबाइल फोन हैज बीन डन इन इंडिया। ठीक है, फॉर टारगेट सेगमेंट 2 देयर विल बी अ जेस्टेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर। जेस्टेशन पीरियड होगा 1 साल का। जेस्टेशन पीरियड का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो जो ये स्कीम होगी इसके अंदर जो इंसेंटिव दिए जाएंगे, ऑब्वियसली देयर विल बी सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस बेस्ड ऑन विच और यू कैन से देयर वुड बी सम एलिजिबिलिटी टू गेट द इंसेंटिव अंडर द स्कीम। ठीक है, तो जो नए मोबाइल फोन ब्रांड्स होंगे इंडियन, राइट, जो अभी अभी नए स्टार्ट हुए होंगे, उनको जेस्टेशन पीरियड मिलेगा 1 साल का टू फुलफिल ऑल दीज टर्म्स एंड कंडीशंस और मे बी द एलिजिबिलिटी। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड का मतलब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आ जाओ इसकी एलिजिबिलिटी पे दोस्तों। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी? ठीक है, एलिजिबिलिटी से पहले एक एडिशनल इंसेंटिव भी है इसमें ऑफ अप टू 1.5% इन केस वेयर द मैन्युफैक्चरिंग इज डन यूजिंग द डोमेस्टिक सोर्स ऑफ की कंपोनेंट्स, यानी कि जो मोबाइल जो बना है उस मोबाइल में जो की कंपोनेंट्स है वो डोमेस्टिकली प्रोक्योर किए गए, यानी कि वो बाहर से इंपोर्ट नहीं किए गए। ठीक है, उसके लिए एडिशनल इंसेंटिव होगा 1.5% का, लेकिन ये तब मिलेगा जब मिनिमम 25% ऑफ द टोटल मोबाइल फोन यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग द डोमेस्टिक कंपोनेंट्स। ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि डोमेस्टिक जो की कंपोनेंट्स है वो डोमेस्टिकली प्रोक्योर होने चाहिए, वो टोटल मोबाइल फोन यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड के 25% होने चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने 1 साल में 1000 मोबाइल फोन बनाए, एक फाइनेंशियल ईयर में 1000 मोबाइल बनाए, तो उसमें से 25% यानी कि 250 मोबाइल फोन ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर डोमेस्टिकली प्रोक्योर्ड कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ओनली देन ये 1.5% वाला जो इंसेंटिव है वो मिलेगा। क्लियर हो गया? अब आ जाओ एलिजिबिलिटी पे। तो दो टारगेट सेगमेंट्स हैं, दोनों की अलग अलग एलिजिबिलिटी है। TS1 की अगर मैं बात करूं तो इसमें सारे मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑब्वियसली, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम टर्नओवर जो है वो 10,000 करोड़ का होना चाहिए इन फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 10,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इन द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर द कंपनीज मस्ट मीट एन एनुअल थ्रेशोल्ड ऑफ ₹5,000 करोड़ एवरी ईयर ओवर एंड अबव द फाइनेंशियल ईयर 25-26 सेल्स। ऐसा नहीं है कि 25-26 में अगर 10,000 करोड़ की सेल थी, एनुअल टर्नओवर था, तो द कंपनी इज नाउ गोइंग टू गेट द इंसेंटिव फॉर द नेक्स्ट 5 years. नो, द कंपनी हैज टू परफॉर्म इन द अपकमिंग 5 financial years एज वेल विद द मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ ₹5,000 करोड़ रेवेन्यू पर ईयर। हर साल अगले 2000 मतलब इस फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से लेके 30-31 तक जब तक ये स्कीम चलेगी, हर साल 5,000 करोड़ का मिनिमम टर्नओवर कंपनी का होना चाहिए। ओनली देन द इंसेंटिव्स आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है, अ न्यू ब्रांड बिकम्स एलिजिबल ओनली आफ्टर अचीविंग टोटल एनुअल सेल ऑफ 10,000 करोड़ इन इंडिया एंड मस्ट देयरफॉर मीट द ईयर ऑन ईयर थ्रेशोल्ड सेल्स रिक्वायरमेंट ऑफ 5,000 करोड़। अब मान लो कि कोई नया ब्रांड बना है जो 25-26 में था ही नहीं, मान लेते हैं जो 25-26 में था ही नहीं, वो बना ही 26-27 में है, तो पहले तो उसको एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 करोड़ रुपीस का एनुअल टर्नओवर करके दिखाना पड़ेगा एंड उसके बाद हर साल 5,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर करना होगा। ओनली देन सबसे पहले तो एलिजिबल ही तब होगा जब उसको 10,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर करके दिखाएगा वो। जब ये हो जाएगा उसके बाद हर साल 5,000 करोड़ वाली जो कंडीशन है वो तो फुलफिल करनी होगी। क्लियर है? जो टारगेट सेगमेंट 2 है उसमें भी सारे मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया। बट यहाँ पे ऑफ कोर्स जो मिनिमम टर्नओवर है वो कितना है, 1,000 करोड़ का इन फाइनेंशियल ईयर 25-26 एंड दिस मस्ट बी द इंडियन ब्रांड्स। ये किसके लिए, जो टारगेट सेगमेंट 2 था ये किसके लिए था, इंडियन ब्रांड्स के लिए था ना। तो जो जितने भी क्राइटेरियाज है वो फुलफिल होने चाहिए ऑफ एन इंडियन ब्रांड, जैसे कि फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, IPN ट्रेडमार्क हेल्ड विद इन इंडिया, मैनेजमेंट कंट्रोल विद इंडियन सिटीजंस एंड मोर देन 51% शेयर होल्डिंग हेल्ड बाय द इंडियन सिटीजंस, तभी ये बात बनेगी, अदरवाइज
एलिजिबल नहीं है वो, ठीक है। और इसके दो इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं, टू टेक द क्यूमुलेटिव मोबाइल फोन प्रोडक्शन टू 39 लाख करोड़ एंड टू जनरेट अराउंड 60,000 डायरेक्ट जॉब्स, ठीक है। 39 लाख करोड़ मोबाइल फोन प्रोडक्शन हो जाएगा till the end of this particular scheme, or 60,000 direct jobs are going to be created, are going to be generated or created through this particular scheme, ठीक है जी। तो ये थी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। लेट्स आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स नाउ। इट विल बी implemented by MIT with an outlay of 50 to 500 crores. Implementation ministry ठीक है, but outlay is 60 to 500. For target segment 2, the minimum eligibility is minimum turnover of 1000 crores, सही है। टारगेट सेगमेंट 2 के लिए 1000 करोड़ है। फॉर टारगेट सेगमेंट 1 द एलिजिबिलिटी इज मिनिमम टर्नओवर ऑफ 5000 करोड़, इट इज 10,000 करोड़, राइट। एंड एन एडिशनल इंसेंटिव ऑफ अप टू 1.5% शैल बी प्रोवाइडेड फॉर डोमेस्टिक सोर्सिंग ऑफ की कंपोनेंट्स, जो कि बिल्कुल सही है। तो हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट, विच मींस द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ओनली 2 and 4। क्लियर, समझ में आ गई ये स्कीम, इंसेंटिव स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी समझ में आ गया? इफ यस प्लीज गिव मी अ थम्स अप गाइस, only then I'll move ahead. In the meantime, let me just read out the question number 2 for you. जल्दी से बताओ if it is clear or not. Question number 2. National Animal Disease Control Program is being implemented for controlling and eradicating foot and mouth disease (FMD) and brucellosis through nationwide vaccination. People who are preparing for NABARD examination, you guys must remember this scheme. Must remember this scheme because it is very important and it is directly related to your syllabus of ARD, that is animal husbandry. Animal husbandry से ये directly related है, so you must remember this particular scheme. B and D are same. हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, B and D are same. इसको चेंज कर लो, 1 and 4 कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, 1 and 4 भी है ऊपर, 2 and 3 कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है जी। इसको 2 and 3 कर लिया हमने, हाँ जी। तो नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, हेडेड बाय राजीव रंजन सिंह, हेडेड बाय राजीव रंजन सिंह, ठीक है, ही इज द मिनिस्टर। ऑब्जेक्टिव क्या है जी इस स्कीम का? ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल एंड इरेडिकेट एफएमडी एंड ब्रुसेलोसिस, दीज आर द टू डिजीजेस, ठीक है। वन इज वायरल डिजीज, वन इज बैक्टीरियल डिजीज अमंग कैटल्स, ठीक है। कैटल्स में ये मेजरली ये दो डिजीजेस होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कैटल की और बहुत सारे अलग अलग जानवरों की जाने जाती है, ठीक है। तो इन दो डिजीज को कंट्रोल करने के लिए और इरेडिकेट करने के लिए द नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इज देयर, एंड द इरेडिकेशन और द कंट्रोल इज बीइंग डन थ्रू द नेशन वाइड वैक्सीनेशन एंड सर्वेलेंस, ठीक है। ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम है बेसिकली फॉर एलिमिनेटिंग एफएमडी एंड ब्रुसेलोसिस। एफएमडी क्या होता है? इट इज अ सिवियर हाईली कंटेजियस वायरल इलनेस। हाईली कंटेजियस का मतलब ये ट्रांसमिट हो जाती है एक जानवर से दूसरे जानवर में बहुत तेजी से। वायरल इलनेस अफेक्टिंग क्लोवन हूव्ड लाइफ स्टॉक लाइक कैटल, पिग्स, शीप एंड गोट्स। क्लोवन हूव्ड का मतलब क्या होता है? जिनके हूव्स, जिनके पैरों में ऐसे दो मुंह होते हैं, जैसे बकरी का आपने देखा होगा, दो ऐसे निकले हुए होते हैं पैरों में, ठीक है। तो ये जो पैरों में नीचे इनके नाखून टाइप का होता है, या घोड़े का जो आपने देखा होगा, वो हूफ बोलते हैं उसको। और अगर ये दो होते हैं तो उसको क्लोवन हूफ्ड बोलते हैं, ठीक है। तो वायरल डिजीज है ये। और ब्रुसेलोसिस क्या है? रिप्रोडक्टिव डिजीज है ऑफ कैटल एंड बफेलोस। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ब्रुसेला अबॉर्टस, क्लियर। It was launched in 2019 and there is a biannual mass vaccination campaign that is conducted for eligible livestock साल में 2 बार, and year tagging is done. Registration and uploading of animal data is also done on the Bharat Pashudan portal, which means this scheme is integrated with the Bharat Pashudan portal. The scheme is integrated with the Bharat Pashudan portal and each animal is assigned a unique 12-digit tag ID. हर एनिमल को एक 12 डिजिट का यूनिक टैग आईडी मिलता है, जिससे कि आइडेंटिफिकेशन हो सके कि हाँ, इनका वैक्सीनेशन हो गया है, इनका नहीं हुआ है, क्लियर। इसके अलावा देयर इज अ रिम्यूनरेशन टू वैक्सीनेटर्स एज वेल, just ₹3 per vaccination dose, and the awareness of this particular program is being spread with the help of matris. Who are matris? Matris are multi-purpose artificial insemination technician in rural India. Multi-purpose artificial insemination technicians in rural India, in short matris. These are responsible for spreading awareness about this particular scheme or the program, so that farmers would be aware about this scheme and
अबाउट दिस प्रोग्राम एंड वो वैक्सीनेशन के लिए जाएं अपने कैटल को लेकर, ठीक है। दे प्रोवाइड डोर स्टेप वेटनरी सर्विस, क्लियर। और एक चीज और ध्यान रखना, दिस स्कीम नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल एंड पशु औषधि इनिशिएटिव, ये 3 स्कीम्स हैं। इन 3 स्कीम्स को मर्ज करके एक अम्ब्रेला स्कीम बनाई है जिसका नाम क्या है, लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। देयर इज एन अम्ब्रेला स्कीम लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम. This is an umbrella scheme and it consists of NADCP, which we are talking about right now. Second is livestock health and disease control, and third is पशु औषधि, ठीक है। और इसके अचीवमेंट्स क्या है अभी तक? FMD outbreaks have been declined from 132 in 2019 to 40 by 2025, and brucellosis outbreaks have declined from 22 in 2019 to 15 in 2025, ठीक है। तो नबार्ड के लोग प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इज हाउ मच अमाउंट पर वैक्सीनेशन डोज इज प्रोवाइडेड एज एन इंसेंटिव टू वैक्सीनेटर्स अंडर द स्कीम, ₹3 एज एन इंसेंटिव इज प्रोवाइडेड, ₹3 मिलते हैं जी पर वैक्सीनेशन डोज के, क्लियर हो गया। चलिए जी आगे चले टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ड ऑन केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। आप सबने इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा डेफिनेटली, आज इसको समझ भी लेते हैं अच्छे से कि एक्चुअली में प्रोजेक्ट है क्या। सो इट इज अ मेजर वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द बुंदेलखंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। आपने बुंदेलखंड रीजन के बारे में सुना होगा, जिसमें झांसी आ जाता है यूपी का, और क्या आता है, ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है एमपी का, है ना। और आपका कह लो ये वाला जो एरिया होता है ना नीचे, जो यूपी और एमपी के बॉर्डर के आसपास का एरिया, ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे पानी बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो मतलब ये ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है काफी ज्यादा, तो इस ड्रॉट अफेक्टेड एरिया में पानी की सप्लाई बढ़ाना इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। इसमें होगा ये, सिंपल शब्द में आपको बताऊं, होगा ये कि केन रिवर का पानी उठा के बेतवा रिवर में मिलाया जाएगा, दैट्स इट, यही होगा मेजर जो इसका काम है, वो यही है। अब वो होगा कैसे वो समझते हैं। द ऑब्जेक्टिव इज ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम केन बेसिन टू द बेतवा बेसिन थ्रू अ सिस्टम कंप्राइजिंग द दौधान डैम, लिंक कनाल एंड एसोसिएटेड वर्क्स। इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, मेजरली दो, एक तो दो दौधान डैम होगा, ठीक है। फिर दौधान डैम से एक इंटरलिंक कनाल बनेगा, ठीक है, जो कि केन के पानी को कहाँ पे लेके जाएगा, बेटवा में लेके जाएगा। चलो अभी मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। उससे पहले केन रिवर के बारे में अगर मैं बताऊं तो केन रिवर जो है माय डियर फ्रेंड्स दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैमूर रेंज, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, कौन सा, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है शायद, हाँ, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, इट ओरिजिनेट्स एंड इट मीट्स यमुना। ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, तो ये यमुना को मिल जाती है जाके बांदा यूपी में, ठीक है। कहाँ मिलती है, बांदा इन यूपी, राइट। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट बेटवा रिवर, तो बेटवा रिवर ऑल्सो ओरिजिनेट्स इन मध्य प्रदेश फ्रॉम विंध्या रेंज, ठीक है, फ्रॉम विंध्या रेंज इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, एंड इट मीट्स यमुना। ये यमुना को कहाँ मिलती है भाई, ये मिलती है हमीरपुर में, हमीरपुर इन उत्तर प्रदेश। तो ये दोनों रिवर जो है यूपी और एमपी दोनों में फ्लो करती है, इसलिए जो इम्पैक्टेड रीजन होगा वो यूपी और एमपी होगा, ठीक है, क्लियर। अब इस प्रोजेक्ट के पूरी स्कीम को समझो। ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम केन टू द बेटवा रिवर थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ 96.7 मीटर हाई दौधान डैम, ठीक है। क्या होगा, केन से पानी निकाल के बेटवा में डालेंगे, ठीक है। कैसे डालेंगे, सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होगा, केन रिवर के ऊपर एक डैम बनाया जाएगा जिसका नाम है दौधान डैम, ठीक है। दौधान डैम केन रिवर के ऊपर बनाया जाएगा। द डैम विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द केन रिवर इन पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। 2 डिस्ट्रिक्ट पड़ जाएंगे, पन्ना और छतरपुर, और इससे 22 विलेजेस इंपैक्ट होंगे, 8 इन पन्ना डिस्ट्रिक्ट एंड 14 इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, और जिनको प्रॉपर मुआवजा जो है गवर्नमेंट दे रही है। मुआवजा भी इसमें मेंशन था, 12.5 लाख रुपए समथिंग है पर हेक्टेयर, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। देन आप लोगों को नहीं, सॉरी जो इम्पैक्टेड होंगे उन लोगों को मिल जाएगा, क्लियर। A 216.465 kilometer long Kane Betwa link canal will take off near the Dodhan Dam and merge into बरुआ सागर near झांसी। अब हुआ क्या, ये दोधान डैम से एक इंटरलिंकिंग कनाल बनेगा जो कि पानी को कहाँ पे लेके जाएगा, बरुआ सागर में, ठीक है। और ये बरुआ सागर जो है दैट इज द पार्ट ऑफ द बेटवा रिवर ओनली, तो यानी कि पानी अब कहाँ पहुंच जाएगा, बेटवा रिवर में पहुंच जाएगा, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स वेरियस इरिगेशन एंड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स
that is going to be implemented by both the governments of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. ये इसमें आप इमेज के थ्रू समझ सकते हो. दिस वाटर इज अवेलेबल इन केन. ठीक है, ये डैम बनाया दौधान डैम. ठीक है, जिसने पानी को कलेक्ट किया केन रिवर से. केन रिवर से ये वाला जो पानी है ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा? केन बेटवा लिंक कनाल पे. ये एक लिंक कनाल है. ठीक है, लिंक कनाल से पानी कहाँ पे चला जाएगा? बरुआ सागर में. ठीक है, बरुआ सागर से पानी कहाँ चला जाएगा? बेटवा रिवर. ठीक है जी, क्लियर हो गया. टोटल कॉस्ट कितना है इसका? 44,605 crores and the target year to complete this project is the year 2030 and the foundation stone was laid down in 2024. It is going to provide irrigation to 10.62 lakh hectares of land. It is going to provide drinking water to about 62 lakh people and it is going to generate 103 megawatt of hydropower and 27 megawatt of solar power. ठीक है, and it is specifically going to benefit the Bundelkhand region of both the states उत्तर प्रदेश and मध्य प्रदेश. क्लियर हो गया? चलो भाई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें. ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम केन टू बेटवा थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस करेक्ट. टोटल कॉस्ट इज 44,605. दौधान डैम विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन केन रिवर इन पन्ना एंड छतरपुर. द टारगेट ईयर फॉर द कंप्लीशन इज 2033, नॉट 33. The target year, my dear friends, is 2030. So this will be the correct answer to this question, option D. हाँ जी, कंट्रोवर्सी में तो होगा ही बिल्कुल. यस, प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है केन बेटवा का क्योंकि जो मैंने भी आपको बताया ना कि ये जो 22 विलेजेस इम्पैक्ट होंगे, ये जो 22 विलेजेस, दीज 22 विलेजेस माय डियर फ्रेंड्स आर मोस्टली द ट्राइबल विलेजेस. So it includes the displacement of tribals and hence this project is in controversy. ठीक है जी. Alright, Neeraj, yeah. चलिए, now let's talk about the questions in short. But if you want to have the PDF of this class, just scan this QR code, join the Telegram channel and get the PDFs. और इसके आगे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है न्यूज इन शॉर्ट, यानी कि जो छोटी छोटी न्यूज है जिसमें कोई बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक है, वो उतना ही है, मतलब एक्सप्लेनेशन है ही नहीं उसके अंदर, उतना ही है वो. Question number 24. Question number 4. In 2024, Government of India launched the Pandemic Fund project on animal health security strengthening in India for pandemic preparedness and response. It is a $25 million initiative supported by G20 Pandemic Fund. The project is implemented in partnership with ADB, Asian Development Bank, FAO, Food and Agriculture Organization, and which of the following organizations? अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि जब ये क्वेश्चन इन शॉर्ट पढ़ते हो दोस्तों, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है दैट इट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इन पार्टनरशिप विद एडीबी, एफओ एंड विच ऑर्गेनाइजेशन. दे कैन आल्सो आस्क यू व्हाट इज द फंडिंग अमाउंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. They can also ask you that it is initiative, it is supported by which initiative or which fund. ठीक है, तो जो क्वेश्चन के अंदर बेसिकली इंफॉर्मेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए. राइट, सो इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन पार्टनरशिप विद एडीबी, एफएओ एंड वर्ल्ड बैंक. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. वर्ल्ड बैंक इज हेडेड बाय अजय बांगा, president, and it is headquartered in Washington DC. IMF, Kristalina Georgieva, it is also headquartered in Washington DC. AIIB, ZhuGi, it is headquartered in Beijing. ठीक है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक की है राउसेफ, डिल्मा राउसेफ, एंड इट इज हेडक्वार्टर्ड इन शंघाई. और WHO के तो भाई ये दामाद है टेड्रोस अधानोम, ये तो पता नहीं कब हटेंगे. Tedros Adhanom is the president of WHO, Secretary General actually, and it is headquartered in Geneva. So important organizations के chief और headquarters आपको पता होने चाहिए. Question number 5. Name the scheme being implemented by the government of Odisha along with Namaste scheme. Namaste scheme I hope आप सबको याद है, National Action Plan for Mechanized Sanitation Ecosystem. ठीक है, this scheme is being implemented by Ministry of Social Justice and Empowerment and Ministry of Housing and Urban Affairs. ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ी है, जाके देख लेना. ठीक है, स्कीम्स की प्लेलिस्ट में, तो ये मैं अभी दोबारा नहीं कराऊंगा. This scheme is being implemented for promoting mechanization in the sanitation work. ठीक है, अब क्वेश्चन ये, नेम द स्कीम being implemented by Government of Odisha along with Namaste to promote mechanization and ensure occupational safety, health, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर सैनिटेशन वर्कर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स. ठीक है, तो सिमिलर स्कीम है उड़ीसा में नमस्ते जैसी, जिसका नाम है गरिमा. अब दे कैन आल्सो आस्क यू दैट गरिमा स्कीम अलोंग विद नमस्ते इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट. द आंसर वुड बी ओडिशा. ठीक है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है भाई? मोहन चरण मांझी.
मोहन चरण मांझी इज द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर कौन है? हरि बाबू। हरि बाबू गवर्नर है। ठीक है, और क्या होता है उड़ीसा में? लेजिस्लेटिव असेंबली जो है 147 सीट है, लोकसभा की 21, राज्यसभा की 10। ठीक है, और क्या पता है आपको उड़ीसा के बारे में? मुझे पता है कि वहाँ पे दो नेशनल पार्क है, सिमलीपल और भीतरकनिका, दो नेशनल पार्क है। और दो टाइगर रिजर्व है, ये दोनों नेशनल पार्क है। दो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे, सिमलीपल, सिमलीपल और पाल वट एवर यू कॉल इट, और सतकोसिया, ये दोनों टाइगर रिजर्व है। एंड ऑफ कोर्स वेरी फेमस चिलिका लेक। चिलिका लेक भी है कहाँ पे? उड़ीसा में ही तो है चिलिका लेक। एंड वाई चिलिका लेक इज फेमस? फॉर इर्रावटी डॉल्फिन। इर्रावटी डॉल्फिन। इर्रावटी इज द नेम ऑफ अ वेरी फेमस रिवर दैट फ्लोज इन म्यांमार। ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए और रिवाइज करते रहो। राम मोहन मांझी है कि मोहन चरण मांझी है? मोहन चरण मांझी नहीं है नाम यार, राम मोहन मांझी है कि मोहन चरण मांझी नाम है? डेस्टिनेशन, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। Ministry of Social Justice and Empowerment has organized national workshop on Mission Zero. What is the objective of Mission Zero? Mission Zero is, my dear friends, for zero fatalities in sanitation network. Mission Zero का objective है to ensure zero fatalities in sanitation work. Chennai Declaration has been adopted during the 14th BRICS Science Ministerial Meet. The consensus adopted the action plan for promoting research infrastructures and mega science projects and operationalizing BRICS GRAIN. ठीक है, चेन्नई डिक्लेयर, देखो 14th ब्रिक्स साइंस मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई थी जिसमें चेन्नई डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया, जिसमें ये बोला गया कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोशन देंगे इन द ब्रिक्स नेशन, और उसके साथ ये भी बताया दैट वी आर गोइंग टू ऑपरेशनलाइज ब्रिक्स ग्रेन। क्वेश्चन ये है, व्हाट डज एन स्टैंड फॉर इन ग्रेन? ग्रेन स्टैंड फॉर ग्लोबल रिसर्च एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, एंड हेंस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नेटवर्क। ठीक है, what is the budget allocation of PM Asha for 26-27? PM Asha has been discussed in pretty much detail in the government schemes playlist. तो जाओ और देखो, और आज भी हम करेंगे एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आई टेक द गवर्नमेंट स्कीम्स क्लासेस एट 7 PM। आज भी पढ़ेंगे दो इंपॉर्टेंट स्कीम, तो आप शाम को 7 बजे आ जाना। For 26-27, the budget allocation for PM Asha scheme is 70 to 100 crores. The right answer is option C. Question number 9, very important. Ministry of Rural Development headed by Shivraj Singh Chauhan launched the National Campaign on Entrepreneurship second edition under the day NRLM, National Rural Livelihood Mission, for another 3 months from 21 August to 21 November with an expanded focus on both farm, non-farm enterprises and marketing of SHG products. During the event, the first Rural Enterprise Technical Bulletin was released, which will focus on empowering Lakpati Didi. ठीक है, जब ये कैंपेन लॉन्च हुआ, नेशनल कैंपेन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, उस दौरान एक बुलेटिन, टेक्निकल बुलेटिन लॉन्च की, एंड दैट बुलेटिन इज गोइंग टू फोकस ऑन एम्पावरिंग द लखपति दीदीज एंड टू अचीव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट ऑफ 6 करोड़ लखपति दीदीज। ठीक है, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द टेक्निकल बुलेटिन? इट इज संकल्प शक्ति, ऑप्शन सी। And the last question for today, with which international organization Government of India has signed a loan agreement of $230 million to modernize water supply and sanitation in Chennai? It is Asian Development Bank. The right answer is option B. Of course, ऐसे जो लोन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको बस 4 चीजें पता होनी चाहिए। पहला, लोन किसने दिया, दूसरा लोन का अमाउंट, तीसरा कौन से स्टेट के लिए लिया गया, और चौथा उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। एंड ऑल द 4 थिंग्स आर अवेलेबल हियर इन दिस क्वेश्चन। All right, my dear friends, that's it for today's class. I hope all the questions and their explanations are clear. If you have any doubts, please ask me. Otherwise, give me a thumbs up. जल्दी से बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। और शाम को 7 बजे दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम की क्लास होती है, तो आप लोग आइए, पढ़िए और एंजॉय करिए। खैर पढ़ के तो क्या ही एंजॉय करोगे, तो ठीक है चलो, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज गिव मी अ थम्स अप। ऑलराइट, okay, let's wind it up. I'll see you in the next class on Wednesday. Keep studying and keep studying hard. Goodbye, take care, and God bless.